Okay, so good morning. Now we are starting with a new topic, that is algebraic expressions. First of all, expressions. In mathematics, expression मतलब क्या? Equation मतलब क्या? Okay? There are two different things, expression and equation. तो first of all, expression क्या होते हैं? Algebraic expression क्या होते हैं? We will let us understand in this topic. Okay? So now, first of all, let us take an example. If I have five chocolates, and if I ate two, then how many chocolates are remaining in my hand? So, but obvious the answer is 3. Okay. If I write it in an equation form, so it will be like this: 5 minus 2, that is 3. Okay, 5 minus 2, that is 3. But suppose if I don't know that how many chocolates I have ate, I don't know how many chocolates that I have ate, that is 1, that is 2. If I ate 3, if I ate 4, and if I ate 5, all of them, is there any possibility that I can eat 6 chocolates? No, there is no possibility. But the thing is, there is a trial and error type method which takes me like how many chocolates I have eaten. 1, 2, 3, 4 or 5. I don't know how many chocolates that I have eaten. Okay, so let us assume that the chocolates that I have eaten be X. Let the number of chocolates that I ate be X. Now what is X? Why X? X means it is a number which is represented in an alphabet. Okay, the number which is written in an alphabet. Okay, so now it will be like, so if I subtract that X from 5, if I subtract that X from 5, X can be anything. X can be 1, 2, 3, 4, 5, or it can be 0 also, because अगर मेरा मन ही नहीं करेगा चॉकलेट खाने का तो मैं क्यों खाऊं? So that's why 5 minus X. Clear? Now this the thing which I have written is an expression. The thing which I have written is an expression. Now expression अभी आप बोलोगे जो भी होगा वो expression. चलो मान लेते हैं 7 minus y, ये भी expression है. Y मतलब कौन? It is an alphabet in terms of number. Okay, 7 minus 5, this is also an expression. Can I say 7 minus 3y? This is also an expression. तो अभी 3y क्या आ गया बीच में? देखते क्या आ गया बीच में 3y. So now just write these things that this is an expression. Okay, now I am moving on towards first of all the terms. Now in this expression, if I take this expression, let us take for example an expression that is 5 minus x. So how many terms are there in this expression? There are 2 terms. Terms मतलब जो प्लस और माइनस को लेके बाइफरकेट हो जाता है, that are called as terms. Now this is subtraction operation going on over here. This subtraction bifurcates 2 terms. That is, this is first term and this is second term. Okay, now there are 2 terms over here. How many terms are there? Number of terms. Number of terms कितने हैं? 2. Now, if I say 7 minus x plus y, how many terms are there? 1, 2 and 3. Number of terms are 3. Is this thing clear? Okay. Now, if I say y plus 7 minus m, अभी m क्या है? M is also the thing
The thing is, we can use any of the alphabet in terms of a number. We can use M also, we can use X also, we can use A, we can use B, we can use Z, we can use anything. तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स लिखे, मतलब दोनों भी अलग अलग नंबर्स हैं. They don't indicate the same numbers over here. Y अलग है, M अलग है. Then how many terms are present over here? तो ये कितने हैं? Number of terms? बोलो 4? नहीं, 3. Is this thing clear? Number of terms कितने हैं? 3. Is this thing clear? Okay. तो now यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी 3y या फिर कुछ 3m वगैरह कुछ तो लिखा था, तो वो है क्या? Now suppose if we are writing this or any of the alphabet in terms of number, we will call it as variable. We will call it as a variable. Now 7 plus x minus y. How many variables are there? How many variables are there? There are two variables, that is x and y. There are two variables. How many constant numbers are there? Constant मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है. कौन है वो? 7. x की वैल्यू पता है? नहीं. y की वैल्यू पता है? नहीं. But 7 की वैल्यू we definitely know, and that's why ये constant है and ये है variables. Okay, getting clear? So how many constants are there over here? 1. And how many variables are there over here? That is 2. And how many terms are there? That is 3. मैं लिख लेता हूँ, आप भी लिख लो. Number of constant कितने हैं? 1. Number of variables कितने हैं? 2. And number of terms कितने हैं? तो वो है 3. Getting clear? Okay. So now I am moving on towards, अभी मैं ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ. It is like 7x plus y. तो आप बोलोगे सर 7x क्या होता है? 7x मतलब 7 is a constant. 7 is a constant number. ये वैल्यू तो मुझे पता है, but that 7 is getting multiplied with x. 7 is getting multiplied with x, okay, plus the another variable that is y. How many terms are present over here? अभी आप बोलोगे कि सर 7x और y ये 3 टर्म्स है, बट मैं बोलूँगा कि आप गलत हो. क्यों? क्योंकि ये पूरा मिलके एक टर्म बनाता है. अभी ये कैसे? अगर सपोज यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कौन बाइफरकेट करता है, टर्म्स को कौन बाइफरकेट कर रहा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन. डिड आई सेड अर्लियर कि मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को बाइफरकेट करेगा? नहीं. मैंने बोला कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल बाइफरकेट दिस टर्म्स. मल्टीप्लिकेशन कभी बाइफरकेट नहीं करेगा. तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय x है, तो 7x मतलब 7 multiplied by x. That multiply is not bifurcating the terms. Bifurcate कौन कर रहा है? प्लस. तो कितने टर्म्स है? 1 और 2. 2 टर्म्स है यहाँ पे. अभी क्लियर हुआ? गुड. नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2. ओके. नाउ ये 7x जो लिखा है हम लोगों ने 7x, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग इज 7 multiplied by x. क्लियर है? where x is our variable and 7 is our constant. कांस्टेंट या फिर कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा होगा कोएफिशिएंट. COEFFICIENT, कोएफिशिएंट. कुछ टेक्स्ट बुक में इसे कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक में इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं. बट टर्म तो सेम है. टर्म तो 7x ही होगा, टर्म थोड़ी चेंज होगा. 7x where 7 is constant और कोएफिशिएंट x is a variable. क्लियर है? कॉपी पेस्ट करो बुक में.
ओके, नाउ जैसे कि मैंने बोला कि द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट आर 8 बी एक्स, मतलब क्या, मुझे पता नहीं कितने चॉकलेट्स मैंने खाए, ठीक है, तो मैं उसे x मान ले लेता हूँ। मतलब क्या, द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल, और ये सब कुछ हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। Now what are algebraic expressions? The expressions which are written in the form of variables, in the form of variables, तो उसे हम लोग बोलेंगे algebraic expression. Okay, तो can I say this, is this an algebraic expression? Yes, definitely it is an algebraic expression, but how many terms are there? 1 2 3 4 5 5? No. How many terms are there? 3. 1 2 and 3. Why? जैसे कि लास्ट में मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बाइफरगेट योर टर्म्स। कौन बाइफरगेट कर रहा है? प्लस और माइनस। 1 2 and 3, 3 नंबर्स है सिर्फ इसमें, आई मीन 3 टर्म्स है सिर्फ इसमें। इज दिस थिंग क्लियर? तो नाउ राइट डाउन यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशंस, एंड देन यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ टर्म्स, एंड एक टेबल बना दो। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर? 3. हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर? 4. तो अभी मैं जितने भी लिखूंगा आपको उसके हिसाब से लिख लो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? Now, how many number of terms are there in this thing? 4. In this 5. In this again 5. आप लोग बोलोगे कि सर ये टर्म तो सेम ही दिख रहे हैं मुझे। नहीं, ये भी अलग है। क्यों अलग है? Because y का स्क्वायर is there, and ये सिर्फ y, ये n, this is n, and this is a constant वाला part. तो 1 2 3 4 5. How many terms are there? 5. तो लिख के दो how many terms are there over here fast. Okay, I hope this is done. Now let us bifurcate this and this in different names. Okay, now this contains how many terms? 3. This expression contains how many terms? 5. Okay, 5. Now I will bifurcate each and everything. Okay, first of all I will say monomial. Now what is monomial? Monomial means an expression which contains only one term. अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो 7y, is this an expression? Yes, definitely. But अगर आप लोग बोलोगे कि सर इसके आगे प्लस माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसे कैसे एक्सप्रेशन घोषित कर रहे हैं? अरे ये सिंगल टर्म है, इसके आगे मैं प्लस 0 भी लिख दूँ तो भी ये 7y रहेगा, राइट? तो प्लस 0 लिखो या ना लिखो, बट दिस इज एन एक्सप्रेशन. नाउ दिस एक्सप्रेशन which has how many terms? 1. How many terms? 1. क्लियर है? तो नाउ ये 1 मतलब क्या? मोनो मतलब क्या होता है? 1. मोनो मतलब क्या होता है? 1. ओके, तो मियल मतलब टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? 1 टर्म. मतलब मोनोमियल, 1 टर्म.
क्लियर है, वन टर्म। तो नाउ एग्जाम्पल में लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल्स 7q 5x 3m 4n square 7pq। अभी आप लोग बोलोगे कि अरे सर p और q एक साथ क्यों लिखा है? अरे p और q एक साथ लिखो या ना लिखो फिर भी ये एक ही टर्म बन जाएगा। q एक टर्म बन रहा है बिकॉज दे ऑल दोस थ्री आर इन मल्टीप्लिकेशन विद ईच अदर। क्लियर है? जैसे 7pq लिखा है, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ एक एक्सप्रेशन 7pq प्लस 3mn माइनस 7mn स्क्वायर। चलो अभी आप बोलोगे कि सर ये कितना घटिया है, कितना बड़ा है। अरे बड़ा नहीं है, बाइफरकेट किससे हो रहा है? प्लस और माइनस से ही हो रहा है। और किससे हो रहा है? तो टर्म कितने हैं? 1 2 3। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3। क्लियर है? ओके, नाउ दिस इज 7pq। तो ये भी एक ही टर्म हो गया। एक टर्म मतलब क्या? मोनोमियल। नेक्स्ट आ जाता है बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल? बाय मतलब क्या? बाय मतलब टू, बाय मतलब टू। तो टू टर्म्स, टू टर्म्स। बाय मतलब क्या? टू। मियल मतलब क्या? टर्म्स। तो बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। तो एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर टू टर्म्स का एक एक्सप्रेशन बोलो, कैन आई से x प्लस वाई? बहुत इजी टर्म, x प्लस वाई बहुत इजी। एक दो टर्म्स है, दिस इज अ बाइनोमियल। 4m स्क्वायर माइनस 3n बाइनोमियल। 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बाइनोमियल। 3mn क्यूब माइनस 7pqr स्क्वायर s। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या लिख रहे हो? ABCD नहीं लिख रहे हो, मैं टर्म्स लिख रहा हूँ। कौन से टर्म्स? ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है। क्यों? क्योंकि माइनस से ये दोनों टर्म बाइफरकेट हो चुके हैं। ये टर्म में 3 वेरिएबल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टर्म में 4 वेरिएबल्स है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट टर्म सिर्फ दो ही है। टर्म्स कितने हैं? दो। कौन से? 3mnq का एक फर्स्ट टर्म, 7pqr स्क्वायर s का सेकंड टर्म। गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अभी ट्राइनोमियल क्या होता है? जैसे आपने ही बोला, ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो वैसे ही 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। और फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ट्राइनोमियल बन गया। 4mn स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 7pq ट्राइनोमियल बन गया। फिर से यहाँ पे भी देखो, दिस इज अ ट्राइनोमियल। यस, बिकॉज 1 2 3 टर्म्स प्रेजेंट है। ट्राइनोमियल क्लियर है? अभी इसके आगे अगर जाओगे तो क्वाड्रोनोमियल है और वो सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल तक खत्म कर देंगे। बट एक और चीज मैं आपको सीक्रेट जो है वो बताता हूँ, जो यहाँ पे छुपी हुई है। ये जो टॉपिक है ना, वो कनेक्शन जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड में। कहाँ पे? ये पूरा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा, इसके आगे क्या लिखा है? नॉमियल, नॉमियल, नॉमियल। अगर 1 लिखो तो मोनो आ जाएगा, 2 लिखो तो बाय आ जाएगा, 3 लिखो तो ट्राई आ जाएगा। अगर बहुत सारे हैं तो हम लोग लिखेंगे पॉली। क्या लिखेंगे? पॉली, POLY, पॉली, पॉली। और उसके आगे क्या लिखेंगे? नॉमियल। एंड हियर वी स्टार्ट विद पॉलिनोमियल। समझा? पॉलिनोमियल मतलब क्या? मेनी टर्म्स। ये जो लिखा है हम लोगों ने, ये भी पॉलिनोमियल है। ये जो लिखा है, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, एंड दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। समझा अभी? So we are starting with the topic polynomial.
क्लियर है? इसके बाद एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूलाज भी है जिसे हम लोग बोलते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो इसका ही कनेक्शन है, इसका ही साइड पार्ट है, बट इसके साथ कनेक्शन में पॉलिनोमियल भी। ओके, तो पॉलिनोमियल टॉपिक इज इन 9th स्टैंडर्ड, तो पहले अभी इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, चलो बाय।